ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੀਐਸਏ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਕੋਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮਿੰਗ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਮਿੰਗ ਕੋਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। Humming code is set of error correction code that can be used to detect and correct the bit error। ਬਿਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਕੈਨ ਅਕਰ, ਦਾ ਡਾਟਾ ਐਰਰ ਕੈਨ ਅਕਰ ਵੈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਮੂਵਡ ਔਰ ਸਟੋਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਮਿੰਗ ਕੋਡ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਫਾਰ ਆਰ ਡਬਲਯੂ ਹਮਿੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬੈਰਲ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹਮਿੰਗ ਕੋਡ ਵਰਡ ਇਨਕਲੂਡ ਦਾ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਮਿੰਗ ਕੋਡ ਬਣਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪੈਟੀ ਬਿਟ। ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਤੇ ਆਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਟਾ ਬਿਟ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਡੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਟਾ ਬਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਜ਼ ਅ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਟੀ ਬਿਟ, ਪੈਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਦੇ ਲਈ ਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਦੀ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਪੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਲੱਸ 1 ਕਰਕੇ। ਫॉर एग्जाम्पल जिमें इफ वी हैव 4 डाटा बिट, मतलब कि 4 डाटा बिट है, 4 डाटा बिट है, मतलब डी अपने को इज इक्वल टू कितनी दी हुई है 4। देन द वैल्यू ऑफ द पी इज कैलकुलेटेड बाय ट्रेल एंड एरर विद द अबव इक्वेशन। आ जी इक्वेशन है बेटा ट्रेल एंड एरर ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਤੀ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੋਲਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਫॉर एग्जांपल इफ यू हैव 4 डाटा बिट, डाटा बिट किन्ने 4 आ, दैन वैल्यू ऑफ द p इज कैलकुलेटेड बाय ट्रेल एंड एरर मेथड। ਤਾਂ ਲੈਟ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਐਂਡ 1 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਦੀ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ p ਦੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੀ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ 2 ਭਰਤੀ, p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 2 ਭਰਤੀ ਤਾਂ 4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਸੋਲਵ RSH ਤਾਂ ਵੀ ਗੈਟ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। d ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। p ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 2 ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ 1 7 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 3। ਜੋ 3 ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ 2 ਦੀ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਬੇਟਾ 3 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 8 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 + 3 + 1 dp ਦੀ ਮੁੱਲ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਦਾ। ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ p ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਕਾਹਦੇ, ਰਾਈਟ। This means that the 3 पैटी bit are required to provide single error correction for 4 data bit। 4 डाटा बिट ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟੀ ਬਿਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਦੀ ਪਲੇਸਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਬਿਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਨਾਓ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਬਿਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨ ਕੋਡ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਕੋਡ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਦਾ 4 डाटा बिट एंड 3 पैटी बिट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 4 ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਬਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਿਟ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ p1 ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਆ 1 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ 2 ਤੇ ਆ, ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ 2 ਹੋ ਗਏ, d1 ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡਾਟਾ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ p3 4 ਤੇ ਸਟੋਰ ਆ, d2 5 ਤੇ, d3 6 ਤੇ, d4 7 ਤੇ। मतलब डाटा लाइन्स कितनी है, डाटा बिट कितने यूज किए 1 2 3 4, पैटी बिट कितने यूज किए बेटा 3। ठीक है। मेक ऑल बिट पोजीशन दैट आर पावर ऑफ द 2 एज अ पैटी बिट। 2 के अकॉर्डिंग पावर आ बिट की पोजीशन है। जे बेटा आप 1 यूज की तो 1 आ गया, जे 2 यूज की तो 2 आ गया। इस तरह जो स्केयरिंग कर 4 8 16 32, इस तरह मतलब अगे के अगे स्केयरिंग है जी होंगी गई है। पहला आप 2 की रेज पावर करांगे उस अकॉर्डिंग 4 तो 64 लास्ट तक आर इंडिकेटेड। इस तरह आप 100 अगे की वैल्यू जी दिखाने। द सिंबल पी एन
designation a particular parity bit and DN designation a particular data bit। ਜਿਹੜੀ PN है बेटा वो particular parity bit ਲਈ यूज़ कर रहे हैं and D है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ यूज़ कर रहे हैं data bit ਲਈ। The three parity bit P1 through P3 are in position 1, 2 and 4 respectively दिखाया and the 4 bit of data D1 through D4 are in the remaining position 3, 5, 6, 7 respectively। इस तरह ਆਪਾਂ दिखाया मतलब कि वो लगातार ये पोजिशन स्टोर की। ठीक है बेटा अगे कैलकुलेटिंग द पेटी बिट वैल्यूज। पेटी बिट वैल्यू को कैलकुलेट किमें करते हैं मतलब आप वैल्यूज किमें करते हैं बेटा जिमें आपने कढ़ी हुई 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह। ठीक है जी। इस तो बाद बेटा आ गया आप ईच पेटी बिट कैलकुलेट द पेटी फॉर सम ऑफ द बिट इन कोड वर्ड। एक कोड वर्ड दिता जाता है द पोजिशन ऑफ द पेटी बिट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ बिट। सीक्वेंस वाइज होंगी पोजिशन तो पहला 1 आ फिर 2 आ फिर 3 आ। अल्टरनेटली चैक एंड स्किप मतलब उन्होंने चैक करते हैं या उन्होंने स्किप कर देने मतलब छड्ड देने। स्किप करना मतलब उनका छड्ड देना। टू फाइंड द बिट वैल्यू फर्स्ट राइट द बाइनरी नंबर फॉर ईच डेसिमल पोजीशन। कोई भी डेसिमल पोजीशन दी उन्होंने बेटा बाइनरी नंबर लिखा जाए पहला मतलब कि डेसिमल एक्सप्रेशन को काहदे विच चेंज किया जाऊगा बाइनरी दे विच एज ए शोन इन थर्ड रो ऑफ द टेबल बिलो। ठीक है जी। अगे आप देखते हैं नैक्सट इंडीकेट द पेटी बिट एंड डाटा बिट लोकेशन एज शोन। पहला देखो बेटा की है अपने को भी कोई भी डेसिमल पोजीशन दी उन्होंने बाइनरी चेंज करना फिर आप पेटी के डाटा बिट की जी लोकेशन हैगी वो आप देखा। ठीक है जी। नैक्सट बेटा ये की आ गया अपने को बिट की डिजाइनेशन वो तो वही चक रहा बेटा बिट की पोजीशन बाइनरी पोजीशन नंबर जिमें हम अपने 1 की पोजीशन दिखानी है तो 001 जो 2 में बेटा तुम सॉल्व करोगे अपने को 0101 होगा। इस तरह 3 में करोगे 0111 जो 4 में करोगे 10001 जो 5 में करोगे दिस 1 इस तरह सारे की बाइनरी पोजीशन चेंज हो जाएगा। डेसिमल नंबर चल रहा बेटा बिट पोजीशन है जी डेसिमल फॉर्म के इनू चेंज करके देखो 1 का जो आप बाइनरी कढ़ांगे डेसिमल के फॉर्म के तो ये आंसर आ जाऊगा जो 2 में कढ़ोगे ये बन जाऊगा 3 में कढ़ोगे ये बन जाऊगा 100 डाटा बिट्स तो पेटी बिट्स। डाटा बिट्स के लिए मतलब कि यूज़ किया जा रहा है तो पेटी बिट्स के लिए ये इन्होंने आई थिंक रॉन्ग लग्या हुआ। डाटा बिट्स के लिए DN यूज़ करा पेटी बिट के लिए PN यूज़ करा। कैलकुलेशन ऑफ द P1 पहला P1 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। नोटिस दैट बाइनरी लोकेशन नंबर ऑफ पेटी बिट P1 हैज़ अ 1। यदा बाइनरी लोकेशन है जी वो बेटा अपने को 1 दी हुई है फॉर इट्स राइट मोस्ट डिजिट। ठीक है जी। दिस पेटी बिट चैक ऑल बिट लोकेशन सारिया लोकेशन चैक कर रहा है इंक्लूडिंग इटसेल्फ अपने आप दैट हैव वंस इन द सेम लोकेशन इन द बाइनरी लोकेशन नंबर मतलब किसी होर थां ते तो नहीं 1 दिता होया तो देयरफॉर पेटी बिट P1 चैक बिट लोकेशन 1, 3, 5 एंड 7। पेटी बिट अपने को बेटा कि चैक करूँगा 1 करूँगा उस तो बाद की करूँगा बेटा अपने को 3 तो बाद 5 तो बाद की करूँगा 7। इन्हों के अपने को चैक करके दिखाऊगा अपने को भी इन्हों तो नहीं कोई मतलब मेरा। कैलकुलेशन ऑफ P2 सिमिलरली कहते बाइनरी लोकेशन नंबर ऑफ पेटी बिट 2 हैज़ अ 1 फॉर इट्स कहते सैकेंड राइट मोस्ट डिजिट। ठीक है जी। ये भी एक ही लोकेशन है। दिस पेटी बिट चैक ऑल बिट लोकेशन इंक्लूडिंग इटसेल्फ अपने आप को कंटेन करता दैट हैव वंस इन द सेम लोकेशन इन द बाइनरी लोकेशन नंबर देयरफॉर पेटी बिट P2 चैक बिट ये बेटा अपने को आ गया 2, 3, 6 एंड 7 ये आ गया 2, 3 सैकेंड की गल की अपने आप के हो गया बेटा कि 2 हो गया फिर इस 3 आ गया 3 तो बाद 6 हो गया फिर 7 मतलब डाटा लाइन्स ही चैक कर रहा है। कैलकुलेशन बेटा थर्ड द बाइनरी लोकेशन नंबर ऑफ द पेटी बिट P3 हैज़ 1 फॉर इट्स थर्ड राइट मोस्ट डिजिट है। दिस पेटी बिट चैक ऑल बिट लोकेशन इंक्लूडिंग इटसेल्फ अपने आप को भी लैंदा तो दूसरियां भी लैंदा गा। ठीक है जी। जिहदे की आ जाऊगा अपने को 4, 5 एंड 4 आ गया 4 अपना P3 हो गया बेटा अपने को 4, 5, 6, 7 ये सारिया हो गया। इस तरह मतलब अगे दे अगे लोकेशन है जी सारे दी चैक करता जाए। ठीक है जी। नैक्सट बेटा अपने को डिटेक्टिंग एंड कुरैक्टिंग द एरर को डिटेक्ट तो कुरैक्ट किमें करते हैं आप कहते जो 4 बिट डाटा वर्ड है आप 4 बिट बारे गल कर रहे हैं रिटन इंटू द मैमरी लिखे जाते हैं टुगैदर विद द 3 पेटी बिट आप 3 पेटी बिट यूज़ करते हैं एज अ 7 बिट कंपोजिट वर्ड तो मतलब कि 7 बिट तो मतलब मिल के बनता क्योंकि आप ये जी लोकेशन हैगी आप शुरू की 1 तो लैके 7 तक गए थे डेसिमल when the 7 bit are read from memory जो 7 bit रीड किए जाते memory they are checked again for error फिर दोबारे फिर error चेक करता the parity of the word is checked over the same group of bit उस ग्रुप के द्वारा ही चेक किया जाता including their parity bit अपने आप को भी इंक्लूड करता। if there are 3 parity bit in the code word जे अपने को 3 आ
तो देन 3 पेटी चेक आर मेड, तो 3 पेटी आप चेक करांगे। ठीक है, इफ देयर आर 4 पेटी बिट इन द कोड वर्ड तो 4 यूज करांगे। ईच पेटी चेक विल जीम टू करैक्ट एंड इनकरैक्ट रिजल्ट, हर एक का कोई ना कोई रिजल्ट तो होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। द टोटल रिजल्ट ऑफ ऑल पेटी चेक इंडिकेट द बिट इफ एनी देयर इज नो एरर, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਰਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਿੰਗਲ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਕੋਡ ਫਾਰ ਡਾਟਾ ਵਰਡ 1001 ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਈਵਨ ਪੇਅਰਟੀ ਬਿਟ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਵਨ ਪੇਅਰਟੀ ਬਿਟ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਅਰਟੀ ਬਿਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਰ 4 ਬਿਟ ਡਾਟਾ ਵਰਡ, ਮਤਲਬ 4 ਬਿਟ ਆ ਗਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 4 ਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो लैट P इज इक्वल टू 3 आप लैट किया तो ए इक्वल टू 8 को स्पेसीफाई होगा। द दिस वैल्यू ऑफ द P सैटिस्फाई द रिलेशनशिप ऑफ इक्वेशन, दिस मीन्स दैट 3 पेयरटी बिट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सिंगल एरर करैक्शन ऑफ द 4 डाटा बिट, 4 डाटा बिट में सॉल्व कर लिए 3 पेयरटी बिट की जरूरत है। कंस्ट्रक्ट अ बिट पोजीशन टेबल एंड एंटर द डाटा बिट पेयरटी बिट आर डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टैप। उसी तरह आप डाटा टेबल तैयार किया बेटा P1 P2 D1 P3 D2 D3 D4 इस तरह 3 हो गए। ठीक है जी, बिट पोजीशन देती। हुण आपां इहदे विच इहदा आह वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जिवें अपने कोले D1 दे विच 1 कड्ढी है, D2 0 0 मतलब कि D1 पहला बिट 1 है, D2 0 है, D3 तीसरा बिट किन्ना गा 0 है, चौथा बिट किन्ना अपने कोले 1। द स्टैप नंबर 3 दे विच बेटा सिंस वी आर यूजिंग इवन पेयरटी बिट, जेकर आपां इवन पेयरटी बिट यूज़ कर रहे हैं, ईच पेयरटी बिट इज सैट सो दैट टोटल नंबर ऑफ वंस, तो आप चैक करांगे टोटल नंबर ऑफ वंस पोजीशन। दैन इंक्लूडिंग द पेयरटी बिट इज ऑलवेज ईवन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पेयरटी बिट आर फॉलोइंग। जिवें बिट P1 की गल करते हैं, चैक बिट पोजीशन, बिट की पोजीशन चैक कर रहे हैं। एक तो बेटा अपने को 1 आ, ठीक है जी, पेयरटी इंक्लूडिंग इट सेल्फ भी हो गया, एक अपना बेटा 3 नंबर पर, एक अपना 5 नंबर पर, एक 7 नंबर पर। एंड मस्ट बी 0 फॉर देयर बी एंड ईवन नंबर ऑफ वंस 2 इन द ग्रुप। बेटा ये देखो वंस किन्ने यूज़ किए जा रहे हैं ग्रुप के 2 यूज़ किए रहे, एक 1 आ हो गया, एक 1 अपने को आ वाला हो गया। नैक्सट बेटा बिट पेयरटी बिट 2 का चैक बिट पोजीशन, ये बिट की पोजीशन चैक की जा रही है बेटा। एक तो आ गया पेयरटी बिट अपने आप 2 आ गया, दूसरा 3 आ गया, 3 तो बाद कितना आ गया बेटा अपने को 6 हो गया, 6 तो बाद कितना आ गया अपने को 7। तो इस तो बाद मस्ट भी यूरो फॉर देयर टू बी एन ईवन नंबर ऑफ वंस, वंस किन्ने ये भी अपने को 2 यूज़ किए जा रहे, क्योंकि 7 ते 3 की गल करती, तो करके ये 2 वंस ने। बिट नंबर P3 चैक बिट पोजीशन आप यूज़ करा 3 पेयरटी बिट की गल कर रहे, एक तो 4 आ गया, 4 तो बाद की आ गया 5 6 7। हुण देखो बेटा एंड मस्ट भी 1 फॉर देयर टू बी एन ईवन नंबर ऑफ वंस 2 इन दिस ग्रुप। तो ईवन नंबर की ये कहा इन्होंने अपने को 4 5 6 7 ये गल की है बेटा अपने को। तो ये जोड़ा अपने को अपने आप भी इंक्लूड कर रहे हैं है ना, वो आप वंस काउंट करते हैं, तो 2 वंस अपने को आ वाले हो गए, ठीक है, सॉरी वंस आ हो गया, तो ये भी हो गया। तो दीज पेयरटी बिट आर इंटर्ड इन द टेबल एंड द रिजल्टिंग कंबाइंड कोड इज दिस वन। तो इन्हें मिल के बनता बेटा देखो P1 के लिए आप 0 बन गया, अपने को P2 0 बन गया, इस तरह P3 लिए आप 1 यूज़ किया, ठीक है, इस तरह सो ऑन करके इन्होंने सारा तो मिल के अपना 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, अब आप भी एग्जाम्पल क्रिएटेड कोड वर्ड ऑफ ये वाला कोड वर्ड अपने को क्रिएट करता। फर्स्ट मेक द बिट सोल्यूशन, इसी तरह कोड वर्ड अपने को सपोज द वर्ड दैट रिसीव्ड इंस्टेड रिसीविंग डज नॉट know what was transmitted, that determine the error and correcting using the even पेयरटी बिट। इस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 001 00001 ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ पेयरटी फॉर ईच पेयरटी बिट। फर्स्ट पेयरटी बिट चेक P1 1357 आ, 2 वंस इन दिस ग्रुप द पेयरटी चेक इज करैक्ट। ठीक है जी, सैकेंड पेयरटी चैक के 2 3 6 7 करना, तो जिद 2 वंस इन दिस ग्रुप पेयरटी चैक करैक्ट हो जूगी। थर्ड पेयरटी के 4 5 6 7 आ, जिद भी वंस इन दिस ग्रुप आ, ठीक है, तो पेयरटी चैक इज इनकरैक्ट है। जे एक जो 1 कला यूज़ कर रहा है वो इनकरैक्ट आ,
ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਿਸ ਇਨਕਰੈਕਟ ਬਿਟ ਮਸਟ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਬਿਟ ਚੈਕਡ ਬਾਈ ਪੈਟੀ ਬਿਟ the total number of ones in the bit 4 5 6 7 should be even error must be one of the bit 4 5 6 7 ठीक है जी however p2 is correct eliminate 6 and 7 similarly p1 is correct eliminating 5 the only bit left is bit 4 which is the कहते 1 in error ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ the since it was read as 0 it should be a 1 ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 0 ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਤਾਂ the correct code is ਕਹਿੰਦੇ this one in the manner error can be corrected इस तरह का error है जो correct करते हैं एग्जांपल समझ के देखो ध्यान देना एक बार जे कोई दिक्कत लगी तो दोबारा पूछ लीजिए ओके बेटा थैंक यू नैक्सट आप अगले लैक्चर के करांगे कैश मैमोरी बारे ठीक है बेटा।